بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنے انتہائی مخلص ساتھی اور دوست اخلاص کے پیکر حضرت مولانا مفتی ذکاء اللہ صاحب دامت برکاتہم کے ہاں ان کے ادارہ جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات میں سعادت حاصل ہوئی، حاضری کی۔ یقیناً اس ادارے نے بہت تھوڑے وقت میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی حاصل کی ہے۔ آج کی اس عاجز اور فقیر کی حاضری اس ادارے کا ماہانہ اصلاحی پروگرام، اس پروگرام میں شرکت کے حوالے سے ہوئی اور قریباً 50 منٹ تک گفتگو کی بھی سعادت حاصل ہوئی، اور اس عاجز کو یقیناً اس بات پر حیرانگی ہے کہ اس موسم میں اور اس وقت میں، یعنی بعد نماز ظہر، جبکہ لوگوں کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کی محبت دیکھنے میں ملی کہ ظہر کے وقت میں بھی مسجد جو ہے وہ مکمل بھری ہوئی تھی، اور بہت اچھا اور خوبصورت پروگرام رہا۔ علاقے بھر کے لوگوں کی محبت محسوس ہوتی تھی۔ یقیناً ان لوگوں کا بڑا محبت کا تعلق ہے حضرت مفتی صاحب کے ساتھ کہ اس کثیر تعداد میں لوگ تشریف لائے۔ حالانکہ ان دنوں میں، دسمبر کے مہینوں میں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، لوگوں نے زیادہ تعداد میں شرکت کر کے اس عاجز کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی، اور میں شکر گزار ہوں حضرت مفتی صاحب کا کہ جنہوں نے بیان پروگرام کے بعد یہاں اپنے دفتر میں اس عاجز کو اس قدر عزت اور حوصلہ افزائی کے ساتھ نوازشات اس عاجز پر فرمائی۔ یہ ادارہ اور اس ادارے کے اندر کثیر تعداد میں امت مسلمہ کی بیٹیوں کی تربیت بہت خوش آئند عمل ہے، اور اس عاجز کا ذاتی تجربہ ہمارے نواں چوک کے قریب اس عاجز کا گھر 47 نار میں پڑھانے والی جو استانیہ ہیں، ان میں بھی کچھ استانیہ ایسی ہیں جو اسی ادارے کی فاضلہ ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سے پڑھی ہوئی بچیاں آج اس عاجز کی بیٹی ان کے پاس زیر تعلیم ہے۔ تو اس ادارے کا فیض پہلے بھی بہت پھیل رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس ادارے کا فیض مزید پھیلے گا۔ جس طرح یہ مشہور جملہ استعمال ہوتا ہے کہ دینی مدار اسلام کے قلعے ہیں، یہ اس مدرسے کو دیکھنے کے بعد اور اس جنگل بیابان میں اس قدر رونق دیکھنے کے بعد یقیناً یہ بات سامنے آتی ہے کہ واقعی دینی ادارے جو ہے اسلام کے قلعے ہیں۔ یہاں سے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ یہ حقیقت ہے۔ مرد اگر تعلیم حاصل کرتا ہے تو سمجھو ایک بندے نے تعلیم حاصل کی، لیکن اگر عورت تعلیم حاصل کرے تو یوں سمجھو کہ اس پورا خاندان نے، اس کے خاندان نے تعلیم حاصل کی، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس ادارے کی اس ترقی کو دیکھ کر دل کے اندر اس ادارے کے لیے خود بخود دعاؤں کا ایک ہول نکلتا ہے، کثرت کے ساتھ دعائیں نکلتی ہیں، اور مفتی صاحب دامت برکاتہم کی جو شخصیت ہے
उसको देखकर मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। कई एक जगहों से, एक जगह पर हमारी महाना मजलिस ज़िक्र है, वहाँ से पता चला कि यहाँ की सरपरस्ती वो हज़रत मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं। बहुत खुशी हुई। इसी तरह एक गांव के इमाम साहब का इंतकाल हुआ। वहाँ के इमाम साहब की ज़रूरत थी उन्हें, तो उस हवाले से एक साथी की उनके साथ बात करानी थी। तो वहाँ पर एक बनात का मदरसा था, पता चला भी इस मदरसे की सरपरस्ती भी मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं। और अभी सफ़र के दौरान मुझे एक साथी ने बताया, हमारे बिल्कुल करीब एक जगह है बलोचा वाला, वहाँ पर भी वहाँ के एक बासी ने हज़रत मुफ्ती साहब को ज़मीन सपुर्द की और कहा कि यहाँ आप दीनी इदारा बनाएं। जिस तरह वहाँ रौनकें हैं, दीन की बहारें हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी रौनकें हों, दीन की बहारें हों। तो इस हवाले से मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हज़रत मुफ्ती साहब की ज़ात पर इंतहाई ज़्यादा एतमाद करते हैं और सिर्फ़ यहाँ पर बैठकर सिर्फ़ यहीं पर दीन का काम नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ से इसको मरकज़ समझ लें। और इस मरकज़ के बाद बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ की सरपरस्ती हज़रत मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, जिससे दिली तौर पर खुशी होती है कि हमारे दोस्तों में, हमारे मोहब्बत करने वालों में एक ऐसा मुखलिस दोस्त जो है मौजूद है, जो अपने इदारे में बैठकर सिर्फ़ यहाँ पर ही नहीं बल्कि दूर दराज और बहुत सारी जगहों पर दीन की खिदमत कर रहा है, दीन का काम कर रहा है। और इसी तरह इस आजिज़ ने यहाँ पर देखा दारुल उलूम ईदगाह कबीर वाला के इसातिज़ा का हज़रत मुफ्ती साहब के साथ बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक़ है। एक प्रोग्राम में हज़रत मुफ्ती साहब के यहाँ दारुल उलूम ईदगाह कबीर वाला के मौजूदा मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती हामिद हसन साहब दामत बरकातुल आलिया ने बहुत ही मोहब्बत के अंदाज़ में मुफ्ती साहब के साथ बर्ताव किया, मामला किया, जिसे देखकर इस आजिज़ को इन पर हसद सा महसूस होने लगा कि अल्लाह पाक ने इस छोटी उम्र में इन्हें कितना नवाजा है। तो बड़ी खुशी होती है मुफ्ती साहब के इस निज़ाम को देखकर, और इस छोटी उम्र में बहुत सारी जगहों पर दीन की खिदमत जो है वो कर रहे हैं और अपना फैज़ फैला रहे हैं। ये बहुत अच्छी एक हज़रत की कारकर्दगी है। इस पर मैं जितने जुमले कहूँ यकीनन वो कम हैं। तो अब थोड़ी देर पहले वो मौजूद नहीं थे तो मैं उनके बारे में इतना कुछ कह गया। अब वो तशरीफ़ फरमा है तो उनकी शख्सियत को मैं छोड़कर बस यही कहूँगा कि हज़रत मुफ्ती साहब का जो इदारा है, ये इदारा, इस इदारे की फाज़ला हमारे इलाक़े में दूर दराज तक जो है दीन का काम कर रही हैं। और ये यकीनन इनके इखलास ही की बदौलत है, वरना आम तौर पर देखा है पढ़ जाना तो आसान होता है, इंसान मेहनत, अल्लाह पाक किसी की मेहनत रखते नहीं हैं लेकिन दीन की खिदमत जो है वही इदारे करते हैं जिन इदारे को चलाने वाले हजरात जो है वो मुखलिस हों। मैं एक वाक़ये पर अपनी बात इख्तिताम पज़ीर करूँगा। हमारे दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खट के जो मोहतमिम और बानी थे हज़रत मौलाना अब्दुल हक़ मुफ्ती मौलाना समीउल हक़ शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे, बहुत बड़े आदमी थे। और हमारे बड़े हज़रत इमामुल उलमा व सुलहा क़ुत्ब आलम हज़रत मौलाना ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे। एक मरतबा वो दारुल हदीस में तशरीफ़ लाए कोड़ा खटक हक्कानिया में, तो हज़रत जब क्लास में आए तो मुस्करा रहे थे खिलाफ़ मामूल। तो शागिर्दों को जो है बड़ा अजीब लगा। तो कुछ शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद जी आप क्यों हंस रहे हैं? तो उस्ताद ने इंतहाई शर्मिंदगी के अंदाज में मुस्कुराते हुए फरमाया बस छोड़ो। जो उनको मुतवज्जे किया भी किताबें खोलो और सबक पढ़ते हैं। अब शागिर्दों ने महसूस किया कि उस्ताद जी वाकई खुश हैं, तो कहा कि नहीं उस्ताद जी हम पहले पूछेंगे कि बात क्या है, पहले आप बात बताएं फिर हम सबक शुरू करेंगे। तो जो मोहब्बत करने वाले इसातिज़ा होते हैं वो यकीनन अपने शागिर्दों के नाज और नखरे भी बर्दाश्त करते हैं। तो हज़रत मुस्कुराए और फरमाया कि मैंने आज कबूल करवा लिया। शागिर्दों ने पूछा कि उस्ताद जी क्या कबूल करवा लिया? फरमाया एक अरसा हो गया मैं दुआ कर रहा था कि या अल्लाह हमारे दारुल उलूम हक्कानिया से जो बच्चा भी फ़ारिग हो कर के जाए, आलिम बन के जाए या हाफिज़ बन के जाए, वो
पूरी दुनिया के अंदर दीन का काम करें और उन बच्चों को हमेशा दीन के साथ जोड़े रखियो, कभी ये बच्चे दीन से दूर ना हो। तो आज मेरे अल्लाह ने मुझे इल्हाम के ज़रिए से बताया कि अब्दुल हक, हमने आपकी इस दुआ को कबूल कर लिया। और वाक़तन इस वक्त हमारे मदारिस में, हमारी खानकाहों में, बड़ी बड़ी खानकाहें और बड़े बड़े मदारिस जो है दारुल उलूम हक़ानिया के तलबा वो चला रहे हैं। मेरे अपने मुर्शिद और शेख ने भी शुरू से आखिर तक मुकम्मल तालीम उसी इदारे से हासिल की। और भी बहुत सारी हस्तियां हमारे मुल्क के अंदर हैं। यकीनन मुफ्ती साहब भी अल्लाह के उन्हीं बंदों में से हैं जिन्होंने अल्लाह पाक से अपने इदारे के बारे में मनवा लिया। और मेरी हमेशा ये दुआ रहेगी कि अल्लाह पाक इस इदारे को हमेशा कायम और दायम रखे, हर तरह के फितनों से महफूज रखे, हर तरह की सहूलतें इस इदारे को नसीब फरमाए। और इस इदारे के मुआवनीन को भी अल्लाह पाक इसी तरह जुड़े रहने की तौफीक नसीब फरमाए, हर तरह की सहूलतें नसीब फरमाए। महंगाई के इस दौर में जहाँ दीनी इदारों पर वाक़तन एक बहुत मुश्किल वक़्त पड़ा है, इस इदारे को अल्लाह पाक महफूज रखे और ये इदारा हमेशा हमेशा जो है इसी तरह चमकता दमकता रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।